اس طرح کی جو علاقوں کی اگر ہم بات کریں، بالخصوص ضلع جنوبی کی اگر ہم بات کریں، جیسے کہ فوٹیجز بھی ویژولز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مخدوش عمارتیں ہیں، جو پرانی عمارتیں ایک دوسرے سے بہت کلوزلی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے مواقع پہ خدا نہ خاصہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اب جو جڑی ہوئی عمارت ہے کہیں اللہ نہ کرے اس کو بھی کوئی ڈیمیج نہ پہنچے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو لوگ ہیں وہاں پر موجود ہے، ظاہر ہے وہ اپنے طور پہ امدادی جو کارروائیاں اس پہ مصروف ہیں، اب تو ریسکیو کی ٹیموں کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں؟ عموماً میں اسی طرف توجہ دلائی کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ تربیت یافتہ لوگ نہیں ہوتے، اور اس سے پھر مشکلات بڑھ بھی سکتی ہیں، لیکن اس وقت کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے کہ جو لوگ موجود ہیں، جو وہاں پر ہیں، وہ فوری طور پر امدادی کام شروع کریں تاکہ ملبے تلے اگر کچھ لوگ ہیں تو انہیں بحفاظت نکالا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمارتیں ہیں، یہ اس طرح جو آپ نے بات کی کہ بڑا گنجان آباد علاقے ہیں، اور جو ایک قواعد ہوتے ہیں کسی عمارت کی تعمیر میں، اس کو یہاں پر بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا، اور یہ باتیں عدالتوں میں بھی ظاہر بحث رہی ہیں، اس پر نوٹسز بھی افسران کے جاری کیے جاتے رہے ہیں کہ قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور ضلع جنوبی میں یہ سب سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ قواعد کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ضلع وسطی میں بھی اسی طرح قواعد کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور یہ ہم نقصان دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں عمارت گرنے کے۔ جی لیکن اسم صاحب، چونکہ آپ ظاہر فیلڈ کو بھی کور کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہم نے ڈسکس کیے ہیں، رپورٹ بھی کیے ہیں، سر اس طرح کی جو غفلت ہوتی ہے اس کا خمیازہ تو یقینی طور پر رہائشی بھگتتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا رہائشیوں کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، وہ پھر بھی اس طرح کی عمارتوں کو خالی نہیں کرواتے؟ اس میں سر قصوروار کون ہے در حقیقت؟ اس میں قصوروار رہائشیوں کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ہے۔ اگر حکومت اس پر جب ایک آرڈر جاری کرے یا کوئی ہدایت جاری کرے تو اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ افراد جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی بھی غلطی اگر ہم کہیں گے ان کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، جس طرح بھی آپ کو بتایا کہ 400 سے زائد عمارتیں ہیں جو خطرناک قرار دی گئی ہیں، مخدوش قرار دی گئی ہیں، خستہ حال قرار دی گئی ہیں۔ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ عمارتیں اس سے زیادہ ہو جائیں گی، کم نہیں ہوں گی، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیرات ہوئی ہیں کراچی میں گزشتہ 10 سے 15 برسوں میں۔ تو یہ 400 عمارتیں نہیں ہوں گی، ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ آپ اب دیکھیں، یہ جو فوٹیجز میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 200 گز پر 7 منزلہ تعمیریں، 100 گز پر 7 منزلہ تعمیریں، تو اس اسٹرکچر پر جہاں گراؤنڈ پلس 1 کی بمشکل اجازت، تو وہاں پر اگر آپ 7 منزلہ عمارت، 8 منزلہ عمارت بنا دیں گے اور اس کا اسٹرکچر اسی طرح کا ہوگا کہ وہ منظم ہوگا، 7 کی جو عمارتیں ہیں یقینی طور پر ان کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ جو اس میں فیملیز رہ رہی ہیں یقینی طور پر وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہوتی ہیں۔ ابھی ایک واقعہ ہوا تھا 7 منزلہ عمارت میں اوپر جو ٹنکی گری تھی، اور پوری وہ نیچے تک تمام جو راہداریاں زینے تھے وہ اس کو تباہ کرتے ہوئے نیچے وہ ٹنکی گری تھی، راستے لوگوں کے مخدوش ہو گئے تھے، اور ان کو لوگوں کو بڑی مشکل سے وہاں سے ریسکیو کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کی تعمیرات میں اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے کہ اس طرح کی رہائشی عمارتوں میں وہ جا کر رہتے بھی ہیں، اور پھر جن عمارتوں کو مخدوش قرار دے دیا جائے، شکستہ قرار دے دیا جائے اور انہیں خالی کرنے کے لیے کہا جائے تو لوگ خالی نہیں کرتے۔ ایک تو شاید وہ اس علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں، پھر دوسرا ایک کرایہ بہت کم ہوتا ہے، اس میں ایک معاشی پہلو بھی آ جاتا ہے کہ ایک ان کی تنخواہیں یا ان کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے علاقے میں تھوڑی مہنگی رہائش لیں۔ یہاں ایک سستی رہائش، ایک لالچ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ایک معاشی مشکل بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی یہ رہائشی عمارت نہیں چھوڑتے، لیکن اس کا نقصان پھر جانی نقصان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ ذمہ دار یقینی طور پر حکومت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ یہ افراد جو کہ یہ عمارت نہیں چھوڑ رہے، لیکن ساتھ ہی اگر حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے کہ یہ عمارت مخدوش ہے، خستہ ہے، تو اسے ہر قیمت پر وہاں سے اسے نکالنا چاہیے۔ بصورت دیگر اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، تو وہ بھی تو جانی نقصان کو سامنا حکومت کو پھر اس کا ایک ازالہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ جی اسم خان صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا، مونس احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مونس، آپ کے پاس اب تازہ ترین اطلاعات کیا سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے، بالکل جو ابتدائی طور پہ ریسکیو کا عملہ وہاں پر پہنچا ہے، 3 افراد کو ملبے ایسے جو ہے نکال لیا گیا ہے، ان کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور باقی کچھ افراد مزید جو ہیں وہ بھی دبے ہوئے ہیں۔ ریسکیو کام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور ان کے نکالنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فوری طور پہ جیسے یہ حادثہ ہوا تھا تو علاقہ مکین وہاں پر چونکہ پہنچے ہیں، انہوں نے کوششیں شروع کر دی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پہ جو ریسکیو کا عملہ ہے وہ وہاں پر موجود نظر آ رہا ہے، اور جو شروع میں جو واضح طور پہ لوگ پھنسے ہوئے نظر آئے تھے
उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि मजीद खदशा ये है कि जो मलबा है, चूंकि हम देख रहे हैं कि पूरी तरह ये इमारत ज़मीन बोस हुई है, तो इस मलबे के नीचे जो है मजीद लोग भी जो हैं वो फंसे हुए हो सकते हैं और उनके निकालने के लिए अब कोशिशें की जा रही हैं। साथ साथ जो हैवी मशीनरी है वो तलब कर ली गई है, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये फौरी तौर पे इंसानी हाथों से या फिर छोटी मशीनरी का काम है कि ये सारे मलबे को हटाया जा सके और जो लोग मुमकिन तौर पे इसके अंदर हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके और यहाँ से लोगों को निकाला जा सके। अब हम ये देख रहे हैं कि जो 1122 की जानिब से भी ये तस्दीक की जा रही है कि 3 अफराद को जो है वो निकाला गया है और जो करीबी अस्पताल है उनको मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन ये जो इमारत हुई है इब्तिदाई तौर पे ये भी सामने आया कि इसके बराबर में एक इमारत है वो भी कुछ मुतासिर हुई है इस इमारत के ज़मीनबोस होने की वजह से। ज़िला जनूबी में ये सारी तमाम इमारतें मौजूद हैं जो कि मखदूश करार दी गई हैं। मजमूई तौर पर तो शहर में 550 से ज़ायद हैं, लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर जनूबी से हमारी बात हुई थी कुछ अर्से पहले, उनकी जानिब से कहा गया था कि 14 इमारतें तमाम इमारतों में ऐसी हैं जहाँ पे अब रिहाइश बिल्कुल भी नहीं हो सकती और उन्होंने फौरी तौर पे उनको खाली करने का कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वहाँ पे ख़ानदान किसी न किसी तौर पे आबाद थे और वो यकीनी तौर पे गरीब अफराद हैं जो कि कहीं पे मूव नहीं हो सकते आसानी से। उनका बुनियादी तौर पर तो नुकता यही सामने आता है और अब हम ये देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर ये अफसोसनाक हादसा कराची में ही हुआ है। लियारी बगदादी का ये इलाका है ज़िला जनूबी का, वही जद में आ रहा है, वही जो है ये इसका निशाना बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड ये इलाका है। कई साल 50-60 साल और 80 साल से भी पुरानी जो है वहाँ पे इमारतें कायम हैं जो कि मखदूश हो चुकी हैं, अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, लेकिन लोग वहाँ से जा नहीं पाते। तो अब यहाँ पे एक मरतबा फिर हादसा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों जब मानसून की बारिश हुई थी उस वक्त भी हमने देखा था कि SBCA और दीगर जो ज़िला इंतज़ामिया उनकी जानिब से ये मुहिम चलाई गई थी और बैनर्स आवेज़ा किए गए थे। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि सिर्फ बैनर्स आवेज़ा कर दिए जाते हैं और सिर्फ वहाँ जाके ऐलानात किए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से कोई इस तरह का संजीदा इक़दाम नहीं देखा गया कि इन खानदानों को कहीं और आबाद करने या इनको कहीं मुंतकिल करने के लिए कोई अमली इक़दाम किए जा सकें। ये हर साल हम देखते हैं कि इस तरह के मामला होते हैं और कभी न कभी एक बिल्डिंग या कोई इमारत का हिस्सा जरूर गिर जाता है और ये वाक़यात बड़े कॉमन होते जा रहे हैं। लेकिन SBCA हो, ज़िला इंतज़ामिया हो, ऐलानात कर दिए जाते हैं, नोटिस लगा दिए जाते हैं, इसके सिवा कोई प्रैक्टिकल स्टेप हम देखें कि हम बोलें कि कॉन्क्रीट स्टेप हो वो नज़र नहीं आता। और आज एक मरतबा फिर इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया कि ये बगदादी के इलाके में रिहायशी इमारत है, ये जो है गिर गई है और जिसमें इब्तिदाई तौर पे 3 ख़वातीन जो हैं वो भी ज़ख्मी जो है उसमें शामिल हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। लेकिन अभी चूँकि हैवी मशीनरी आ रही है और साथ साथ इसमें कितना टाइम लगता है कि तमाम ये मलबा हटाया जा सके और यहाँ पे मजीद कितने अफराद हैं। मोनस ये बता दीजिएगा कि 3 खवातीन जिन्हें रेस्क्यू किया गया है, जैसे कि इससे पहले भी आपने कहा कि जख्मियों को जल्द से जल्द कोशिश ये की जा रही है कि करीबी अस्पताल मुंतकिल करे। करीबी अस्पताल कितना दूर है यहाँ से, क्या उसमें भी दुश्वारी का सामना है? देखिए बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, निजी अस्पताल भी हैं उस इलाके में करीब तरीन। उसके अलावा जो सरकारी सिविल अस्पताल है वो भी चंद किलोमीटर के फासले पर ही है। तो इस वक्त उनको अस्पताल पहुंचाने में तो कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता और ना किया जा रहा है। वहाँ पे जो रेस्क्यू किए गए थे लोग उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जो असल मसला है और अहम तरीन मामला कि वहाँ पे कितने अफराद मजीद मलबे तले दबे हुए हैं और उनको निकालने के लिए फौरी तौर पे किस तरीके से कोशिशें मरबूत कोशिशें की जा सकती हैं वो देखना होगा, क्योंकि ये जितनी देर तक अगर कोई शख्स नीचे फंसा हुआ है तो वो किस हालत में है और मोनस जो फुटेज हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें कुछ हद तक ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि यकीनी तौर पर ये जो फुटेज है ये किसी ने दूसरी इमारत की जो है वो ऊपर वाली जो मंजिल होती है उससे बनाई है। तो कुछ पता चल रहा है, काफी ज्यादा लग रहा है कि कसीरुल मंजिला इमारत थी ये जो मुनहदम हुई है। कितनी मंजिला इमारत थी, इस हवाले से कोई डिटेल्स है आपके पास? 5 मंजिला ये इमारत है, ये अब तस्दीक हो गई है कि 5 मंजिला इमारत थी जो कि ये मुनहदम हुई है। और लियारी में अतराफ के इलाकों में ऐसी सैकड़ों इमारतें कायम हैं और बहुत ही करीब वाक़े हैं। बहुत कई इमारतें ऐसी हैं कि जहाँ पे बहुत छोटे छोटे लेकिन ज़्यादा फ्लैट्स मौजूद होते हैं। इसीलिए अब ये कितने गज पे या कितने बड़े रकबे पे बनाई गई इमारत थी और इसमें कितने फ्लैट्स थे
कितने खानदान थे, ये अभी जो आदाद व शुमार हैं सामने आना बाकी हैं, लेकिन ये तस्दीक ज़रूर हो गई है कि एक ये रिहायशी इमारत थी और इसके अतराफ में भी हम देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है ये इस तरह की कुछ इसका मामला है कि नीचे तो कमर्शियल मार्केट्स बनी हुई हैं लेकिन ऊपर रिहायशी फ्लैट्स होते हैं इस पूरे इलाके में, और यहाँ पे भी यही इमारत को सामने आ रहा है अभी तक का कि ये एक रिहायशी इमारत है जिसमें लोग आबाद थे। और आज जब ये वाक़या हुआ है तो उस वक्त भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद ज़रूर थे, जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं फौरी तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। और अभी मजीद इसके अंदर कितने अफराद ज़ख्मी हैं या कितने अफराद मलबे तले दबे हुए हैं इस बात की तस्दीक तो नहीं की जा सकी है, लेकिन लोगों को ये खदशा है कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो इलाकाई लोग हैं आसपास के इलाका मकीन, उनका ये कहना है कि यहाँ पे मजीद लोग हैं और मुमकिन तौर पे वो जो है अफराद उनकी तादाद 10 या 12 भी हो सकती है, लेकिन अभी ये तस्दीक शुदा बात नहीं है। रेस्क्यू के लिए फौरी तौर पे जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने कोशिशें ज़रूर कर दी हैं, लेकिन ये अलमिया हम कह सकते हैं ज़रूर, क्योंकि माजी में भी कई मरतबा इस तरह के वाक़यात हुए हैं जो हैवी मशीनरी जो इस तरह के हादसात में ज़रूरी होती है उसको पहुँचने में टाइम लग जाता है। तो अभी यहाँ पे कितनी देर में वो तमाम मशीनरी पहुँच पाती है और रेस्क्यू का अमला पहुँच पाता है या फिर वो तमाम स्टेप्स जो हैं फौरी तौर पे ले लिए जाते हैं, ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन अब कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और उम्मीद भी ये की जा रही है कि यहाँ पे जो लोग फंसे हुए उन्हें बर वक्त रेस्क्यू किया जा सके ताकि किसी भी जानी नुकसान है उससे बचा जा सके। जी मोनिस, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ज़िला जनूबी में तो इस तरह की बहुत सारी मखदूश इमारतें हैं, तादाद भी आपने बताई है, इस हवाले से यकीनी तौर पर SBCA ज़िले इंतज़ामी की जानिब से भी ये नोटिस दिए जाते थे रिहायशियों को। इसके अलावा कराची के और कौन से दीगर इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की मखदूश इमारतें अभी भी कायम हैं और क्या वहाँ पर भी नोटिस इशू किए गए हैं रिहायशियों को? बिल्कुल, ये कराची में तकरीबन तमाम अजला हैं सिवाय ज़िला गरबी के। ज़िला गरबी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे मखदूश इमारतों की तादाद SBCA की जानिब से नहीं बताई गई। उनका कहना है कि वहाँ कोई इमारत ऐसी मखदूश नहीं है जो कि नाकाबिल रिहाइश हो। ज़िला जनूबी सबसे ज़्यादा मुतासिर है जहाँ पे तकरीबन 450 के करीब इमारतें हैं। इसके अलावा ज़िला वस्ती में कुछ इमारतें हैं, शर्की में इमारतें हैं, उनकी तादाद कम है। मलीर में चंद एक इमारतें हैं, तकरीबन 5 के करीब इमारतें हैं बताई गई थी। लेकिन ये जो ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, रनशोर लाइन, जो ली मार्केट, ये सारा जो एरिया है ये जनूबी में आता है और यहाँ पे ये सबसे पहले शहर का आबाद होने वाला हिस्सा है। और यहाँ पे आबादी जो है तकरीबन ये जो इमारतें हैं 80-90 साल भी इमारतें, बल्कि 100 साल भी पुरानी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। हमने कई मरतबा ये रिपोर्ट किया है, लेकिन उन इमारतों में लोग आबाद हैं और उनको एक तो सबसे अहम मसला ये है कि लोग जा नहीं पाते, अपनी मजबूरियों की को बताते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को हमने गैर जिम्मेदाराना रवैया भी देखा है, वो ये दावा करते हैं कि इन इमारतों को कुछ नहीं हो सकता, बड़ी पुरानी बनी हुई है, इनकी साख्त बहुत पुख्ता है, हालांकि बज़ाहिर वो बहुत ज्यादा मखदूश भी नजर आ रही होती हैं। और अब यही मामला सामने नजर आ रहा है कि एक इमारत और जो है वो जमीन बोस हुई है और उसके बाद अब ये जिसमें जो लोग भी आबाद थे और कितने अफराद जो हैं इसमें मजीद फंसे हुए हैं या कोई खुदा न खास्ता अमवात ना हो जाएं, इसमें ये देखना होगा, क्योंकि इमारत में मजीद अफराद दबे हुए हैं। इस बात का खदशा वाज़े तौर पे सामने आ रहा है। रेस्क्यू काम की जाने से कहा जा रहा है कि जो लोग दबे हुए थे उनमें से अब तकरीबन जो लोग निकाले गए हैं वो 5 हैं। 5 जख्मियों को निकाल लिया गया है। पहले 3 की तादाद आई थी, लेकिन अब 5 जख्मियों को निकाल लिया गया है। ठीक है मोनिस, साथ ही मौजूद रहेगा चूंकि ब्यूरो चीफ कराची असम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद